न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर। दुर्गापुर में मुखबधिर युवती के साथ दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। विपक्ष ने पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। কি পুলিশ কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি করছে? चित्ररंजन में चला रेलवे का बुलडोजर, TMC का विरोध, ठंड में लोग हुए बेघर। पुरानी चौरंगी फाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के सर्विस रोड के पास सरकारी जमीन दखल को लेकर बीजेपी TMC आमने सामने। কি পুলিশ কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি করছে? दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के ABL जंगल में ले जाकर एक मुखबधिर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप महिला के ही 2 पड़ोसियों पर लग रहा है। प्रवीण पाल और मनोज मल्लिक नामक 2 पड़ोसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया। बताया जाता है कि रविवार की दोपहर दुर्गापुर के कोकोवेन थाना क्षेत्र के सागरभंगा गाँव की एक मुखबधिर युवती अन्य दिनों की तरह सागरभंगा बस स्टैंड से सटे एक घर में नौकरानी के रूप में काम करने गई थी। दोपहर में घर लौटते समय 2 पड़ोसी युवक उसको जबरन साइकिल पर बैठाकर न्यू टाउनशिप थाने के ABL जंगल में ले गए। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। खबर पाकर पहुंचे परिजनों ने प्रवीण पाल को पकड़ लिया, लेकिन मनोज मल्लिक नामक दूसरा पड़ोसी तब तक भाग निकला। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़िता को दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया। 3টার সময় কাজে যায়। আমার মেয়ে 3টার সময় কাজে যায়, 4টার সময় মানে প্রতিদিন যায়। তো ঠিক ঘরে চলে আসছে 4টার সময়। কালকে আসেনি, আমরা খোঁজ করেছি। তারপরে জামাইটাকে পাঠাইছি। তো জামাইটা যে করে দেখছে যে এমনি ব্যাপার, তখন জামাইটা ধরেছে। জামাই আমার ভাইপো তখন ধরেছে। প্রতি 3টার সময় কাজ থেকে বলে 4:30-4টার মধ্যে ঘর ঢুকে যায়। কোথায় কাজ করে? এই যে আমাদের ক্যানফিল হয় না কানাডা ব্যাংকটা, তাঁতিন হোটেলের পাশে একটা কোয়ার্টারে কাজ করে। কালকে হঠাৎ করে বাড়ি ফিরিনি, যে আমরা দেখি 5টা-6টা বাজে বাড়ি ফিরল না মেয়ে। তখন আমরা খোঁজ খবর করি, আমি ছিলাম, আমার ছোটো সামনে ছিল আর বড় জামাইবু ছিল। তখন আমরা হঠাৎ করে দেখি, আমি তো খোঁজাখুঁজি করতে আমরা কী হলো, মনটা হলো যে আমরা এই জঙ্গলটা দেখি একবার, ওই যে ABL জঙ্গলটা হচ্ছে ওইদিকে। তো ABL জঙ্গলটা আমরা যখন ঢুকি তখন দেখছি ওরা, আমরা মোটামুটি অনেকটা চলে গেছি বাইক নিয়ে। তখন দেখি 2জনে ওরা হেঁটে আসছে, মেয়েটা তখন জোরজাবুতি টানতে নিয়ে আসছে। এই ছেলেটি, এই যে মল্লিক, কোথায় থাকে ছেলেটা? ওই নতুন ওই তার নতুন পল্লী। নাম কি আছে? কি নাম মল্লিক? তারপরে আমরা যখন ওকে ধরি ওকে মারতে যাওয়ার উপক্রম, তখন ছুটে পালায়, আমাদেরকে ঠেলে দিয়ে ছুটে পালায়। কজন ছিল? ওরা ছিল 2জন ছিল। ওই যে একটা ছিল প্রবীর পাল আর একটা মল্লিক দিয়ে ছেলেটা। প্রবীর পাল তখন সাইকেলই ছিল, ও সাইকেলটা ছিল। তখন আমার ধরাধরি করার পরে লাস্টে ধরা পড়ে যে আমাদের যে গোলটা রয়েছে না, গোল ইয়েটা 3 মাথা না, চণ্ডী মন্দির যে রাস্তা আছে ওইখানে ধরা পড়ে যায়। মেয়েটা কি জানিস? মেয়েটা জানিয়েছে বলতে মেয়েটা বোবা কালা, মেয়েটা জোর জাবুসে ওকে যেটা করেছে। আমি বলছি পরপর দুর্গাপুরে নারীদের উপর নির্যাতন বাড়ছে। আর অদ্ভুত ব্যাপার, এর আগে নডিয়া আনন্দপুরে একটা মুখবধির মেয়েকে হচ্ছে এইভাবে মানে শারীরিক নির্যাতন ঘটিয়েছিল। পুলিশ হচ্ছে তার মামলা নেয়নি। তারপর আমরা চাপ দিয়েছিলাম, তারপরে হচ্ছে যে হাইকোর্ট পর্যন্ত গেছিলাম। ওই যে মুখবধির শিশুদের বা মুখবধিরে হচ্ছে যে 29 বছর বয়সী মহিলা, তাকে হচ্ছে যে জোর করে হচ্ছে নিয়ে চলে আসবে, তাকে জোর করে নিয়ে আসছে। তার হচ্ছে চিৎকার করতে পারছে না, তার হচ্ছে শারীরিক অক্ষমতার কারণে তাকে হচ্ছে নিয়ে এসে ঘটনা ঘটাচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে যে কি পুলিশ কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি করছে? পুলিশের গাড়ি কোথায় ব্যস্ত? দুর্গাপুর উৎসবে ব্যস্ত পুলিশের গাড়ি, আর হচ্ছে যে ওই ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে টাকা তুলতে ব্যস্ত। এত বড় ঘটনা সাগরভাঙা থেকে উঠিয়ে নিয়ে ABL জঙ্গলে নিয়ে আসছে, বা শারীরিক নির্যাতন করছে। মেয়েটির শারীরিক প্রমাণ তা হচ্ছে পাওয়া গেছে। ডাক্তারবাবুদের এখন ম্যানেজ করার চেষ্টা করবে এইসব পুলিশ আর হচ্ছে দাদারা। আমি বলছি কি চলছে? এটা কি সভ্য জগৎ নাকি? এটা সভ্য জগৎ? आसनसोल नगर निगम द्वारा रेलपार इलाके में साफ सफाई को बेहतर करने के लिए उपमेयर वसीमुल हक तथा सैनिटरी विभाग के MMIC मानस दास के नेतृत्व में मॉनिटरिंग में रेलवे के इकबाल ब्रिज तथा सिद्दीकी ब्रिज इलाके का दौरा किया। उन्होंने गारुई नदी की साफ सफाई का जायजा लिया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए वसीमुल हक ने कहा कि निर्मल बंधु परियोजना के माध्यम से आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारी लोगों के घरों से कचरा उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर का कचरा नदी में फेंक देते हैं, जिससे नदी जाम हो जाती है। लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि नदी को साफ रखने में वह भी अपनी भूमिका का पालन करे। ये 2 जगह गारवी नदी का यहाँ पे जो शहर का
कचरा लोग फेंक रहे हैं, लोगों से बार बार ये अनुरोध किया जा रहा है, अपील किया जा रहा है कि आप लोग जो वेस्टेज है वो नदी में ना डालें, क्योंकि जाम लग जाता है, जिसके बाद प्रॉब्लम हम ही यहाँ के लोगों को सभी को होता है। लेकिन लोग फेंक रहे हैं, तो कुछ जगह पे जैसे ये सिद्दीक ब्रिज के पास और इकबाल ब्रिज के पास में कुछ जगह गार्बेज जमा हो गया है। इसका क्लीनिंग के लिए हम सैनिटेशन डिपार्टमेंट, हमारा मानव दास सैनिटेशन MIC भी है, इसको फिर हम लोग क्लीनिंग करेंगे और सफाई करेंगे। कॉर्पोरेशन जिस तरह से धारावाहिक तरह से सफाई कर रही है, ये काम सिलसिलावार जारी रहेगा, होगा। लेकिन फिर आज आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से फिर ये अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि कृपया हमारा जो हेड बना हुआ है और जो हमारा निर्मल साथी और निर्मल बंधु घर घर जाते हैं गार्बेज उठाने के लिए, आप उनको अपना कचरा दें घर का, और जो हेड बना हुआ है वो भेट में फेंकें, नदी में या नाला में नहीं डालें, जिससे जाम होता है। और ये जाम की समस्या के बाद जो दुश्वारियां पैदा होती है पानी बढ़ने से, हम लोगों को खुद को, सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarburi Mandir, Kali Pahadi, Asansol. जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी-शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। चितरंजन रेल प्रशासन ने रेल नगरी चितरंजन में अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया है। एक ओर CLW का बुलडोजर चल रहा है, दूसरी ओर TMC द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चिरेका द्वारा फतेहपुर इलाके के रोड नंबर 56 और 57 के किनारे सोमवार की सुबह से उन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया।
हालांकि इस अभियान के दौरान देबू घोष के नेतृत्व में चितरंजन शहर के निवासी इसे रोकने के लिए त्रिमूल के झंडे के साथ आंदोलन पर उतरे। देबू घोष और अन्य लोगों ने सड़कों पर लेटकर इस अभियान को रोकने की कोशिश की। वहीं ठंड के मौसम में छत उजड़ जाने से दर्जनों परिवार के सामने भारी संकट आन पड़ा है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि कई दिन पहले इन्हें नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद यह लोग नहीं हटे, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। नोटिस दिया है नोटिस वो नियमानुसार सब नोटिस दिया गया, 10 दिन का नोटिस था वो दे दिया गया, बावजूद भी जो खाली नहीं कर पाए तो क्या करें। कितने लोगों को हटाएगा, मतलब कितना एनक्रोचमेंट कितना है? का तो शायद 45 है, 45 आना। रोड नंबर 56, 57। हाँ, इधर ही सिंदूरी फतेहपुर साइड। आज दोनों जगह होगा। कहाँ जितना होता है फिर काम चालू रहेगा। ऑब्वियस है। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से किसी को अरेस्ट भी किया गया, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? हमारे कार्य में बाधा करेंगे तो हमारा जो कानून के अनुसार कार्रवाई तो लेके गए, तो अरेस्ट है ना, पकड़ के रखे। हाँ, वो रेलवे एक्ट में चालान करेंगे। कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। পারলাম না যে কিসের জন্য ভাঙা হলো না হলো আমি কিছু জানতে পারি। কোথায় ভাঙা হলো ঘটনাটা? এটা কোন জায়গায় ভাঙা হয়েছে? এই তো 57 রাস্তায় ভাঙা হইলো, ওই যে মাটি বাড়ি আমরা বানায় থাক। হ্যাঁ, চিত্তরঞ্জন। তো এগুলো কি অবৈধভাবে নির্মাণ ছিল কি কোনো মানে রেলের জায়গায় ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, রেলের জায়গা, আমরা সরকারি জায়গা, আমরা কামাছিলাম, খাছিলাম, রোজ ছিল। তো এর জন্য ঘর ভাঙার জন্য কোনো নোটিশ দিয়েছিল? হ্যাঁ, নোটিশ তো দিয়েছিল। কতদিন আগে নোটিশ দিয়েছিল? নোটিশ দিয়েছিল ওই এক সপ্তাহ না আগে দেয় না, এই তো 4-5 দিন দিল, আর 4-5 দিনের মধ্যে বাস বললো এগুলা খালি করতে। তো আমরা অত জলদি কোথায় যাব? আমাদের কোনো দিকে ঘর না, বাড়ি না। কতগুলো ঘর হয়েছিল? কতগুলো ঘর ভাঙা হয়েছে? এখানে তো অনেকগুলো 30টা 40টা ঘর ভাঙা হয়েছে। ये यहाँ से यहाँ आप लोग अब मत रहिए। हाँ, तो हम लोग को 2 महीना का भी समय नहीं दिया, 1 सप्ताह का समय नहीं दिया हम लोग को। आकर के बस बोला कि सामान निकाल लीजिए, चले हट जाइए। हम लोग निकाल ही रहे थे, तब तक में बुलडोजर आके चला दिए। हाँ, चला दिए हम लोग को बुलडोजर आकर के। हम लोग कम से कम 30 साल से 30-35 साल से रह रहे थे यहाँ। हम लोग को सब्जी दुकान थे, हम लोग को बहुत साल से, बच्चे लोग छोटे छोटे थे हम लोग को, उसी समय से थे। हाँ, क्या करेंगे अब? हम लोग को घर टूट गया, अब कहाँ हम लोग जाएंगे? दुर्गापुर में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की फीस अचानक बढ़ा दी गई है। इंजीनियरिंग छात्रों ने आज दुर्गापुर के फुलझड़ के पास स्थित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि इस बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस लिया जाए। प्रवेश के समय जो फीस थी उसे अचानक बढ़ा देने का आरोप लगाते हुए फीस वापस लेने की मांग की गई। आरोप है कि कई बार कहने के बाद कॉलेज द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर छात्रों ने सोमवार को कॉलेज गेट का सामने धरना दिया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के चलते कॉलेज के फैकल्टी को बाहर जाने से रोका गया और कहा गया कि जब तक बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली जाती तब तक विरोध आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कॉलेज अधिकारियों की प्रतिक्रिया है कि सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक कॉलेज काम कर रही है। हमारा कंप्लेन ये है कि हमारा जो फी इंक्रीमेंट हुआ है वो पहले अराउंड 3,68,000 था, जो अभी 5,55,000 हो गया। अराउंड अप टू 25,000 पर सेम हमारा फी बढ़ गया। तो हम सरकार और कॉलेज मैनेजमेंट से ये कहना चाहते हैं कि जिस बेसिस पे हमारा एडमिशन हुआ है उसी बेसिस पे हमारा फी लिया जाए। कोई भी इंक्रीमेंट जो भी करना था वो कॉलेज एडमिशन लेने से पहले करता, नेक्स्ट सेशन से करे। ये तरीका नहीं है बीच सेशन में बच्चों का एडमिशन ले लिया आपने, रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद अब सडनली इस फी स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट का है ना, हमने कहा क्या है, गवर्नमेंट का रूल आ गया ना उधर से। তো এরা তো বলছে যে মাঝখান থেকে একটা এরকম ফিস বৃদ্ধি হয়ে যাওয়া, এটা একটা সমস্যায় পড়েছে স্টুডেন্টরা। जो है ना, जो गवर्नमेंट से बात करना है, गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आया है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग बोल रहा है कॉलेज की तरफ से फीस बढ़ा है, कोई कोऑपरेशन नहीं कर रही। उनको आप चेक कर दीजिए ना, अपने रिपोर्टर है ना, और गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार।
साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम के 16 नंबर वार्ड तथा कुल्टी विधानसभा अंतर्गत पुरानी चौरंगी फाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के सर्विस रोड के पास जमीन पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप भाजपा द्वारा लगाया गया था। आरोप है कि इसके पीछे राज्य के सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। भाजपा के टिंकू वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि पर अस्थायी इमारतें बनाई जा रही है। अगर सरकारी जमीन लूटने का यह धंधा अविलंब बंद नहीं हुआ तो वे भाजपा प्रदेश नेत्री अग्निमित्रा पाल और विधायक अजय पोद्दार के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे। আমরা চা দোকান পান দোকান খুলছে সেটা ভালো জিনিস, সেটা আপনি সরিয়ে দিতে পারেন, লেকিন ওখানে স্ট্রাকচার দিয়ে যেভাবে বানাচ্ছে ভবিষ্যতে কী হবে, যেমনি ওখানে হাটন রোডে, গোড়াই রোডে যে সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে সেই সমস্যাটা এখানেও দাঁড়াবে। আর এখানে NH2 রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ জায়গাটাকে দখল করে রেখেছে, তার জন্য নোটিশ করেছে এমবিআইকে বলেছে তারা পিছনে চলে যান। আর এখানে চৌরঙ্গি ফাঁড়িটাকে ভাঙতে হবে, লেকিন চৌরঙ্গি ফাঁড়িটাকে না ভেঙে চৌরঙ্গি ফাঁড়িটাকে একটা আড্ডা বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর কীভাবে তার পাশ থেকে রাস্তা করা হচ্ছে আপনি দেখবেন, এই পাশে যে চৌরঙ্গি ব্রিজ সেটা আউটকামিং ইনকামিং রাস্তা আছে, একদিক দিয়ে যাবেন একদিক দিয়ে আসবেন। সেখানেই চৌরঙ্গির ট্রাফিক পুলিশ কীভাবে ডান দিক দিয়ে লোককে ঘোরাচ্ছে, কীভাবে নিয়ে যাচ্ছে, মানে যখন তখন এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। আমি মিডিয়ার মাধ্যমে আবেদন করব কি ট্রাফিক ডিসি, আসানসোলের ট্রাফিক ডিসি এসে এই জায়গাটাকে দেখুক, যাতে কি এই টার্নিং ব্রিজের টার্নিংটা কীভাবে করছে। আর এখানে যে দখল চলছে, আমি আসানসোলের ডিএমের সাথে অনুরোধ করব কি ডিএম সাহেব NH2 এর রাষ্ট্রীয় রাজমার্গকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাস্তা দেওয়া হোক, যাতে এখানে দুর্ঘটনা ঘটুক। আর যারা টিএমসির নেতারা তারা খালি লুট और ये लूटेर ऊपर काज चलाচ্ছে ওরা। हालांकि बीजेपी की इस शिकायत के आधार पर स्थानीय तृणमूल नेता सुभाषिष मुखर्जी ने कहा कि बीजेपी बेबुनियाद शिकायत कर रही है। तृणमूल कभी भी सरकारी जमीन के जबरन अधिग्रहण का समर्थन नहीं करती है। কোনো অবৈধ দখলকে আমি বা তৃণমূল কংগ্রেসের কেউই কোনো রকম ভাবে সমর্থন করে না। কোনো অবৈধ দখলকে আমরা কিন্তু সমর্থন করি না, কিন্তু সিম্প্যাথিক্যালি গ্রাউন্ড বলে একটা মানবিকতা থাকে। বেকার ছেলেরা আছে, ভারতবর্ষের যে বেকারত্বের যে সূচক 45 বছরের গড় সর্ববৃহৎ। এবার একটা কর্মসূত্র ব্যাপার আছে, পেট চালাবার সংসার চালাবার ব্যাপার থাকে, কেউ দোকান করছে, তো সেই ক্ষেত্রেও অনেক সময় আমাদের হাত পাও বাঁধা থাকে, বলতে পারা যায় না। কিন্তু কোনো অবৈধ দখলকে আমরা কোনোভাবে যে সমর্থন করছি সেটা কিন্তু নয়, একদমই নয়। वहीं सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी इलाके में मोबाइल ड्यूटी पर आए और जमीन पर जबरन निर्माण होता देख उन्होंने तुरंत काम रोकने का आदेश दिया। কি দেখতে এসছো? আমরা এখানে ইয়া হচ্ছে ওই আনঅথরাইজ ইয়ারা বানাইছে, সেই জন্য দেখতে এসেছি, আমরা বন্ধ করার জন্য এসেছি। কি মানে এটা কারা করছিল? এটা কোনো পাবলিক করছে হয়তো। কিন্তু এটা করতে পারে? হ্যাঁ, এটা করতে পারে? এটা না এটা এনেছে আছে। কি এখন কি আপনারা কি পদক্ষেপ নেবেন? আমরা এটা দেখছি, এটা বন্ধ করার জন্য, এটা বন্ধ করব আর
ইয়ে হলো, কাজ বন্ধ হলো? হ্যাঁ, কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। কি নাম? পারভিন বলিয়ে बानपुर कल्पतरु सोपेची आसार के तरफ से त्रिवेणी मोड़ से सटे मैदान में आज स्वर्गीय मोहिनी देवी शर्मा स्मृति शारीरिक प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। यहां प्रमुख समाज सेवी फिरोज खान FK, सुनीता देवी मल्लिक, दिवंगत मोहिनी देवी शर्मा के पुत्र शंकर लाल शर्मा, सरवन साव समेत आसनसोल व बानपुर के प्रमुख लोग मौजूद थे। इस संबंध में आसर से जुड़े बिरजू दास ने बताया कि यह शिविर पिछले 28 वर्षों से यहां आयोजित किया जा रहा है और इसमें आसनसोल सब डिवीजन के 35 स्कूलों के लगभग 2000 बच्चे भाग ले रहे हैं। यह शिविर अगले 7 दिनों तक जारी रहेगा। उन्होंने इसको अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों से अनुरोध किया कि चूंकि इस शिविर में कई लड़कियां भी भाग ले रही है, इसलिए यहां शौचालय की व्यवस्था की जाए तो बेहतर होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन आसर का झंडा फहराकर, कबूतर उड़ाकर तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह शिविर आगामी 24 तारीख तक यहाँ चलाया जाएगा। আমাদের এই ক্যাম্পটা পুরো পশ্চিমবাংলার বুকে যে অল ইন্ডিয়া ক্যাম্প হয় সেখানে 300 স্টুডেন্ট হয়, কিন্তু আমাদের ক্যাম্পে 2000 স্টুডেন্ট হয়। এটা আমার গর্বের বিষয়। আবার দুঃখের বিষয় হচ্ছে 28 বছর ধরে আমরা এই অনুষ্ঠান করছি। এই জন্যই কথা বলছি, যেহেতু আপনারা এসছেন, সাংবাদিকরা এসছেন, যে আমরা কিছুটা আগে শুনছিলাম যে নারী সুরক্ষা বিল, কিন্তু আমাদের দুঃখের বিষয়, আমরা সত্যি আমরা গর্বিত 28 বছর ধরে করছি, কিন্তু আমাদের মা বোনেরা খোলা আকাশের নিচে টয়লেট করছে, খোলা আকাশের নিচে মেয়েরা ড্রেস আপ করছে। আমরা বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমরা লেটার দিয়েছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ডাকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर।